بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکچر 32 کلاس فرسٹ ایئر چیپٹر 4 لیکوڈز اینڈ سالڈز. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسٹرکچر آف میٹلز کے بارے میں. A metal may be regarded as an assembly of positively charged spheres of identical radii. ایک میٹل کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسمبلی ہے، یعنی کہ بہت سارے پازیٹیو چارجز کا ملاپ ہے، ان کا کمبینیشن ہے. سفیئرز آف آئیڈینٹیکل ریڈیائی، اور ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ میٹل ایٹم گول گیند کی طرح ہوتے ہیں اور سب کا ریڈیس جو ہے وہ برابر ہوتا ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دا کلوز پیکنگ آف ایٹمز ان میٹل اسٹرکچر، لیٹ us suppose that the metal atoms are like hard spherical balls. کہتا ہے کہ ایٹمز کی کلوز پیکنگ کو میٹل کے اسٹرکچر میں سمجھنے کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ میٹل ایٹمز بالکل ہارڈ سفیریکل بال کی طرح ہیں، گول گیند کی طرح ہیں. ٹیک 12 سفیریکل بالز اینڈ پیک ان اے باکس. یہ 12 بالز ہم نے لے لی اور ان کو ایک باکس کے اندر بند کر دیا. دا سپیسز ڈیورنگ دا پیکنگ آر لارجر. اس پیکنگ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے خاصے سپیس جو ہیں وہ درمیان میں موجود ہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ لارجر سپیسنگ ہے. It is the natural tendency of the balls to have closely packed arrangement of 11 spheres after shaking. کہتا ہے کہ یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ اگر ہم ان میں سے ایک بال اٹھا لیں اور پھر ان کو شیک کریں تو خود بخود ایک ارینجمنٹ بن جاتی ہے 11 بالز کی. وہ 11 بالز کی ارینجمنٹ کہاں پہ ہے؟ وہ یہ نظر آ رہی ہے ہمیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس جو ہے درمیان میں اسمال ہو گیا ہے، مطلب وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ارینج ہو گئی ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ کم سے کم اور اٹریکشن زیادہ سے زیادہ ہے. In order to understand how various unit cells of the crystal lattice are developed، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کرسٹل کے یونٹ سیل کیسے ڈیویلپ ہوتے ہیں، consider 3 balls which join together in one plane. ہم 3 بالز لیتے ہیں جو ایک ہی پلین میں موجود ہیں. یہ 3 بالز ہم نے لے لیں، دیکھیں یہاں سے اٹھائی ہیں یہ 3 بالز ایسے، یہ 3 بالز ہیں، پھر یہ 3 بالز ہیں، پھر یہ 3 بالز ہیں. تو ہم نے یہ ایک سیٹ جو ہے 3 بالز کا اٹھا لیا، اور ان کے درمیان یہ جو سپیس ہے وہ سپیس یہاں پہ موجود ہے. The 4th ball is inserted in the space created by the other 3 as a second layer. چوتھی بال یہ جو آپ کو نیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے، یہ ہم ان 3 بالز کے سپیس کے اوپر رکھتے ہیں 4th بال کو. In this way tetrahedral structure is obtained. اس طرح ہمارے پاس 4 کونوں والا اسٹرکچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ٹیٹراہیڈرل اسٹرکچر حاصل ہوا ہے یہ سیکنڈ لیئر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے. یہ جو چوتھی بال ہم نے یہاں پہ انسرٹ کی ہے. The depressions created by the first 3 balls are also called interstices or crevices or voids. جو پہلی 3 بالز کے ذریعے ڈپریشنز کریٹ ہوئے ہیں ان کو انٹرسٹیسز، کریوسز یا وائڈز کا نام دیا جاتا ہے. اب نیکسٹ ہے کہ کنسیڈر 11 بالز پریزنٹ ان دا فرسٹ لیئر. یہ جو بالز ہم نے کنسیڈر کی تھی جن میں کلوز پیکنگ تھی. The balls of the second layer circle without shade can fit into the depressions or interstices created by the first layer. یہ فرسٹ لیئر میں آپ کو سپیسز نظر آ رہے ہیں مختلف قسم کے، کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، یہ سپیسز ہیں. تو ان کے اوپر ہم سیکنڈ لیئر کی بالز رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سیکنڈ لیئر کو کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہی بات وہ بتانے جا رہا ہے کہ when the balls of the second layer are arranged، یہ جو نیلے رنگ کی بالز ہم نے ارینج کی ہیں، then all the depressions of the first layer are not occupied. سیکنڈ لیئر کے سارے ڈپریشنز اکوپائی نہیں ہو پاتے. یہ دیکھیں یہ والی جگہ تو اکوپائی ہو گئی ہے، یہ جگہ بھی اکوپائی ہو گئی ہے، یہ جگہ بھی اکوپائی ہو گئی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ کہ یہ والے سپیسز خالی ہیں. There are 2 types of depressions as A and B. اب یہاں ہمارے پاس 2 طرح کے ڈپریشنز ہیں، 2 ڈپریشن میں 2 طرح کے گڑھے ہیں. The depression marked B are not occupied by the second layer.
and one can see the ground from looking at the top through depression B. डिप्रेशन बी जो है यहाँ से हमें नीचे का पेज नज़र आ रहा है, सफ़ेद जगह नज़र आ रही है। ये जहाँ से आपको सफ़ेद जगह नज़र आ रही है, नीचे का पेज नज़र आ रहा है, ये डिप्रेशन बी है। और डिप्रेशन ए क्या है? ये नए डिप्रेशंस हैं जो सेकंड लेयर की वजह से डेवलप हुए हैं। ये देखें सेकंड लेयर की ये 3 बॉल्स हैं और इनके दरमियान ये जो काली जगह आपको नज़र आ रही है, जहाँ से आपको फर्स्ट लेयर नज़र आ रही है, ये एक नया डिप्रेशन है। यहाँ से हम नीचे वाली लेयर को देख सकते हैं। तो ये न्यू डिप्रेशंस जो हैं ये कौन से हैं? इनको हम ए टाइप डिप्रेशन कहते हैं। द न्यू डिप्रेशंस मार्क्ड ए आर क्रिएटेड बाय द सेकंड लेयर। थ्रू द डिप्रेशन ए वी कैन नॉट सी द ग्राउंड। डिप्रेशन ए से हम नीचे वाला पेज नहीं देख सकते, बट द बॉल्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, लेकिन फर्स्ट लेयर की बॉल्स को देख सकते हैं। नाउ अरेंज द बॉल्स ऑफ थर्ड लेयर। अगर हम थर्ड लेयर रखें सेकंड लेयर के ऊपर, जिसको दिखाया नहीं जा सकता यहाँ पे, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि थर्ड लेयर बॉल्स मे बी एकोमोडेटेड इन ए आर बी टाइप इंटरस्टिसेस आर डिप्रेशंस। तीसरी लेयर की बॉल्स को हम या तो ए टाइप डिप्रेशन के ऊपर रख सकते हैं या फिर हम उनको बी टाइप डिप्रेशन के ऊपर रख सकते हैं। तो वहाँ से हमें 2 तरह की अरेंजमेंट हासिल होती हैं। वो कौन सी हैं देखते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। When the atoms of the third layer fit into the interstices mark B, जब हम B टाइप डिप्रेशन के ऊपर तीसरी लेयर रखते हैं, then the atoms of the third layer will not lie directly above those of atoms of first layer. तो फिर एटम फर्स्ट लेयर के ऊपर लाई नहीं करते बल्कि ग्राउंड के ऊपर लाई करते हैं। दिस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ABC ABC, या फिर उसको 1 2 3 1 2 3 कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 तरह की लेयर्स होती हैं। इट इज़ नेम्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, और इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का नाम देते हैं। इस पैकिंग के अंदर चौथी, 7वीं और 10वीं लेयर एक दूसरे के सामने आ जाती है। अगर हम 10 लेयर बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो चौथी, 7वीं और 10वीं लेयर एक दूसरे के सामने होगी। इसको यहाँ हम फिग में भी देख सकते हैं। AB ये है हमारे पास ABC क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये पहली लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। तो इसका मतलब है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 3 तरह की लेयर्स होती हैं, ABC ABC। अब हम देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब हम थर्ड लेयर जो है वो ए टाइप डिप्रेशंस के ऊपर रखते हैं, ए टाइप क्रेविसेस, देन दीज एटम्स विल डायरेक्टली लाई अबव द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर। तो ये तीसरी लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर डायरेक्टली लाई करती है, क्योंकि ए टाइप डिप्रेशन से फर्स्ट लेयर की बॉल्स डायरेक्टली नज़र आती हैं। दिस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं? AB AB या 1 2 1 2। क्यों कहते हैं इसको AB AB 1 2 1 2? क्योंकि इसमें 2 टाइप की लेयर्स हैं। दिस पैटर्न हैज़ बीन नेम्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इस पैटर्न को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस पैकिंग में तीसरी, 5वीं और 7वीं लेयर एक दूसरे के फ्रंट में आ जाती है। ये देखें AB AB, ये ए टाइप लेयर है, ये बी टाइप लेयर है, फिर ए टाइप लेयर है, फिर बी टाइप लेयर है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स की लेयर्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। यहाँ 3 टाइप्स की लेयर्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये था जी हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। 12 बॉल्स लेते हैं तो स्पेस ज़्यादा होता है, एक बॉल निकाल के शेक करते हैं तो स्पेस कम हो जाता है। फिर इन स्पेसेस के ऊपर सेकंड लेयर को रखा जाता है। सेकंड लेयर के रखने से कुछ स्पेस फिल हो जाते हैं, कुछ नए स्पेस जनरेट हो जाते हैं। नए स्पेसिस को ए टाइप कहते हैं, और जो स्पेस फिल नहीं हो पाए और नीचे का ग्राउंड नज़र आ रहा है उसको बी टाइप कहते हैं। जब आप थर्ड लेयर को बी टाइप के ऊपर रखते हैं तो उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, ABC ABC। और जब आप थर्ड लेयर को ए टाइप के ऊपर रखते हैं तो हम इसको AB AB और या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस पेपर से कौन से शार्ट क्वेश्चन पिछले टॉपिक्स में से आ चुके हैं। तो स्टेट इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ये हम पढ़ चुके हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हर एटम जो है अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पूल बनाते हैं, एक तालाब बनाते हैं। पॉजिटिव मेटल आयंस के बारे में ये यकीन किया जाता है कि वो जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन पूल के ज़रिए, मतलब एक पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के ज़रिए दूसरे पॉजिटिव आयन से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम क्यों हो जाती है, ये भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कल।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पॉजिटिव आयन ओसिलेट करना शुरू कर देते हैं, ऊपर नीचे हरकत करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता रोकते हैं. देयर मोशन हिंडर्स द फ्री मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन बिटवीन द पॉजिटिव आयन, हैंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता रुक जाएगा तो बिजली भी गुजरना बंद हो जाएगी. मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं. मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब ये है कि इनको शीटें भी बनाई जा सकती हैं और इनको तारों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. तो मैलिएबल मीन्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स एंड डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मैलिएबल मतलब शीटें बना सकते हैं, डक्टाइल मतलब तारे बना सकते हैं. जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं हम मेटल के ऊपर तो उसकी लेयर खिसक जाती हैं. एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेटल चेंजेस विदाउट फ्रैक्चर. इस तरह स्ट्रक्चर मेटल का जो है वो चेंज होता है, लेकिन मेटल जो है वो फ्रैक्चर नहीं होती, ब्रेक नहीं होती. इसलिए हम कहते हैं कि ये मैलिएबल और डक्टाइल हैं. सोडियम सॉफ्टर क्यों है कॉपर से, जबकि दोनों ही अच्छे कंडक्टर हैं. हार्डनेस जो मेटल की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड को इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं. नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पर एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक रेडियस. तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. द मेटेलिक बॉन्ड इज वीकर इन केस ऑफ सोडियम एज कम्पेयर टू कॉपर बिकॉज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एटम. सोडियम एटम में वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं. यही वजह है कि सोडियम का मेटेलिक बॉन्ड वीक और कॉपर का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. सो सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों हैं दोनों, क्योंकि दोनों ही मेटेलिक सॉलिड्स हैं, दोनों में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं. एज बोथ सोडियम एंड कॉपर हैव फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हैज बोथ सोडियम एंड कॉपर आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. नेक्स्ट है कि क्लोज पैकिंग में सिर्फ 74% स्पेस ऑक्यूपाई होता है, 26% बाकी खला रह जाता है. इसकी वजह क्या है? अभी हमने आज के टॉपिक में पढ़ा दो तरह की क्लोज पैकिंग थी, हेक्सागोनल और क्यूबिक. तो मेटल आयंस आर सफेरिकल इन शेप, हमें पता है. जब ये सफ़ेयर हम पैक करते हैं, क्यूबिक या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस अनऑक्यूपाइड रह जाता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा है. ये दोबारा देख लेते हैं. देखें ये स्पेस अभी भी बाकी है. तो इस तरह के स्पेसेस जो बचे हुए हैं, इस वजह से कुछ ना कुछ खला बाकी रह जाता है. दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वाइड. इसको हम वाइड कहते हैं या डिप्रेशन कहते हैं, गढ़ा कहते हैं इसको, एक गढ़ा. द मैग्नीट्यूड एंड शेप ऑफ दीज वाइड्स डिपेंड अपॉन द वे ऑफ क्लोज पैकिंग. ये गढ़े या स्पेस कितना ज़्यादा होंगे ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्लोज पैकिंग हुई है. हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों में अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 74% स्पेस ऑक्यूपाई होता है, बाकी 26% अनऑक्यूपाइड रह जाता है. तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.